Welcome, my dear students of grade 7th. Today we will study the next topic of our history chapter 5th, that is architecture during Mughal period. The Mughal period can be called second classical age after the Gupta and the golden period of Muslim architecture in India. It is an amalgamation of Turkish, Iranian and Indian style. गुप्ता पीरियड के बाद जो नेक्स्ट पीरियड है दैट इज़ मुग़ल पीरियड को इंडिया में हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस पीरियड में बहुत शानदार बिल्डिंग बनवाई गई और जो बिल्डिंग बनवाई गई इस समय वो तुर्किश, ईरान और इंडियन स्टाइल का मिक्सचर थी. The architectural structure of this period were magnificent and showed power of the mighty rulers. The forts, palaces, gates, mosques, gardens were built. The reason behind this may be the stability of the emperors, and as their empires stretched from north and the northwest of India up to the Deccan Rajasthan. There was no dearth of money as well. वो उस समय जो बिल्डिंग बनवाई गई मेनली क्या थी? फोर्ट्स, पैलेसेस, गेट, मॉस्क्यू एंड गार्डन्स. और इसका रीज़न क्या है कि इतनी ज़्यादा बिल्डिंग्स बनवाई गई? कारण ये था कि जो मुग़ल एम्पायर थी उसकी स्टेबिलिटी, उस एम्पायर ने काफ़ी लंबे समय तक रूल किया, जिस कारण से उनके पास काफ़ी पावर थी और वेल्थ थी, जिस कारण से वो इस तरह प्रकार की अलग अलग बिल्डिंग बनवा सके. The feature of dome and the arcs were quite prominent. A double dome also came into existence. A double dome is built of two layers. There is a layer inside another. The inner layer provides ceiling for the interior of the building, while the other लेयर क्राउन द बिल्डिंग. और उस समय जो बिल्डिंग्स बनवाएगी उसका जो स्पेशल फीचर्स था दैट इज़ डबल डोम. एक डोम बनवाया जाता था, उसके ऊपर एक और डोम बनवाया जाता था. द इनर लेयर प्रोवाइड सीलिंग. जो अंदर वाला डोम था दैट इज़ अ सीलिंग फॉर द बिल्डिंग्स एंड द आउटर वाज लाइक अ क्राउन फॉर द बिल्डिंग. Babur, the first king of the Mughal dynasty. The founder of Mughal dynasty did not live long, devote his time to construct huge and elaborate structure like the other Mughals. However, he laid several garden palaces in Agra and Dholpur and Delhi. बाबर जो फाउंडर था मुग़ल डायनेस्टी का, उसने लंबे समय तक रूल नहीं किया, जिस कारण से वो उस प्रकार की बिल्डिंग्स नहीं बनवा सका जो दूसरे मुगल्स ने बनवाई थी. पर फिर भी उसने जो बनवाए थे वे हैं गार्डन पैलेसेस इन आगरा, धौलपुर एंड दिल्ली. नेक्स्ट एम्परर इज हिमायू. ही हिमसेल्फ डिड नॉट बिल्ड मैनी स्ट्रक्चर इन इंडिया बट हिज mausoleum, Humayun's tomb, which was built under the supervision of his widow Hamida Banu Begum, reflect Humayun's long contact with Persian culture in design. This is the first example of double dome in India. हिमायू ने भी बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए, पर जो उसकी खुद की मौसोलियम और हिमायूस टॉम्ब है दैट वर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ the buildings of that time. That shows that he has a long contact with the Persian culture, क्योंकि जो बिल्डिंग्स उन्होंने बनवाई है उसमें पर्शियन आर्किटेक्चर देखने को मिलता है. एंड हिमायूस टॉम्ब वाज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम इन इंडिया. दिस इज हिमायूस टॉम्ब इन दिल्ली. दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डबल डोम. Clear? Next king is Akbar. Akbar's greatest architectural achievement was the new capital at Fatehpur Sikri. Akbar undertook construction on a massive scale. His architectural structure can be grouped into two. The first one comprised fort, palace and mosque. The second group mainly consisted of Fatehpur Sikri. This capital city of Akbar was
दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ट्रेजरी, पंचमहल, जोधाबाई's पैलेस, बीरबल पैलेस, the mosque with the gateway to it called the Buland Darwaza. This is probably the most remarkable structure made in India. This victory gate was built in 1596 CE to commemorate the Akbar's conquest of Gujarat. Akbar एक great architectural था. Akbar construct different types of buildings like forts, palaces and mosques and build the city that is फतेहपुर सिकरी. और फतेहपुर सिकरी में उसने क्या स्पेशल बिल्डिंग बनाई? दैट इज़ दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, ट्रेजरी, पंचमहल, जोधाबाई's पैलेस एंड बीरबल पैलेस. इसके अलावा जो जिसके लिए वो फेमस है दैट इज़ बुलंद दरवाज़ा. और बुलंद दरवाज़ा एक सबसे रिमार्केबल स्ट्रक्चर है इंडिया में. और ये उसने कब बनवाया था? जब उसने गुजरात पर विक्ट्री हासिल की थी. इस जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, यादगार बनाने के लिए उसने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था. क्लियर? दिस इज़ द पंचमहल दैट इज़ मेड बाय अकबर. दिस इज़ जोधाबाई पैलेस इन फतेहपुर सिकरी. Next king after the Akbar is Jahangir. Jahangir and Shah Jahan reigned were an age of marble. The red stone was soon replaced by marble in its most refined form. नेक्स्ट अकबर के बाद जो नेक्स्ट किंग आए जहांगीर और उसके बाद शाहजहां. दैट इज़ द एज ऑफ मार्बल. मीन्स क्या है? उस समय जो रेड स्टोन से पहले बिल्डिंग्स बनवाई जाती थी, अब उसके प्लेस पर वाइट मार्बल से बिल्डिंग बनानी शुरू हुई. क्लियर? दिस इज इत्माद उद्दौला स्टोन built by Noor Jahan for her father was perfect example of beautiful tomb built in marble. It shows the transition from splendor of Akbar's red stone structure. इत्माद उद्दौला की जो टॉम बनवाई हुई है, जिसे नूर जहाँ ने बनवाया था, एक बहुत अच्छी ब्यूटीफुल टॉम बनी हुई है, वो मार्बल से बनी है. एंड इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल दैट कि अब रेड सैंडस्टोन के प्लेस पर मार्बल का यूज़ होना शुरू हो गया था. जहांगीर बिल्ड द टॉम्ब ऑफ अकबर एट सिकंदरा नियर आगरा. इट इज़ वेरी बिग स्ट्रक्चर रेज्ड ऑन ए पोडियम. देयर आर coils on each side at the top, but the usual central dome is missing. Jahangir also laid out several gardens such as Shalimar Bagh, Nishat Bagh in Kashmir, which bear testimony of the passion for the gardens. जहांगीर ने क्या बनवाया? उसने अकबर की टॉम बनवाई, जिसको उन्होंने कैसे बनवाया? एक बड़े पोडियम के ऊपर बनवाया. उसके आसपास केयोस्क मीन्स एक पवेलियन रास्ता बना हुआ है, दैट इज़ नोन एज समर हाउस, जिसको हम समर हाउस के नाम से भी जानते हैं. और उसके ऊपर सेंट्रल डोम इज़ मिसिंग, यानी वहाँ पर कोई डोम नहीं बनवाया गया. जहांगीर आल्सो लेड सेवरल गार्डन. तो जहांगीर ने बहुत से गार्डन भी बनवाए हैं जो ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, दैट आर शालीमार बाग, निशात बाग इन कश्मीर. दिस इज अकबर्स मौसोलियम इन आगरा. शालीमार गार्डन एट श्रीनगर दैट वाज बिल्ट बाय जहांगीर. दिस इज निशात बाग इन श्रीनगर that is also built by Jahangir. Next king is Aurangzeb. Aurangzeb had none of his father's passion for architecture. औरंगजेब में अपने फादर जहांगीर की तरह इतना इंटरेस्ट नहीं था आर्किटेक्चर में. जो मेन बिल्डिंग्स उसने बनवाई है दैट आर मौसोलियम ऑफ औरंगजेब, बादशाही मस्जिद एट लाहौर एंड मोती मस्जिद इन रेड फोर्ट. And this is the Moti Masjid that was made with white marble. Next is gardens, tombs and forts that were built during the Mughal period. During the ancient period, large stepped wells, baolis were made attached to the temples. पहले समय में
किसी भी मंदिर में एक बाउलिस यानी कि स्टेप्ड वेल्स बनाए जाते थे, यानी कि कुएं में अंदर जाने के लिए स्टेयर्स होती थी। इन द 16th century, Babur introduced formal garden placed with the rectangular walled structure. 16th century में बाबर ने टाइप के गार्डन बनाने शुरू किए जिनकी शेप क्या थी, रेक्टेंगुलर, और उसके आसपास वॉल बनवाई जाती थी। Beginning with the Akbar, some of the most beautiful Charbagh or the Charbagh were constructed. The Humayun's tomb was constructed between 1562 CE and 1572 CE. Jahangir and Shah Jahan constructed terrace garden in Kashmir, Agra and Delhi. Shah Jahan adapted Charbagh as a riverfront garden. This is the example of Chaharbagh or Charbagh that were made during the Mughal period. The garden was divided into 4 parts. Next is Lal Mahal Badi, 1637 CE, that is built during the Mughal period. The riverfront garden was adapted in the layout of Taj Mahal in Agra. Humayun's tomb was built in the traditional known as 8 paradise or हज बिस्ट। जो उस टाइम जो लाल बाड़ी या ताज महल बनवाया गया, दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द ले और दैट उसके सामने एक रिवर बनवाई जाती थी और रिवर के फ्रंट में गार्डन था। दैट ले आउट वॉज अडेप्टेड इन द लाल बाड़ी एंड द ताज महल। दिस इज़ द ब्यूटिफुल ताज महल, और जिसमें उस बिल्डिंग के फ्रंट में रिवर है और रिवर के साइड में गार्डन्स बनवाए गए हैं। दैट्स ऑल ऑफ द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल period. I hope all of you understand about this and the chapter the architecture of the Mughal period. Thank you for watching the video.